ये बच्चे आपके सामने इतना अच्छा मैसेज लेकर आए हैं, तो कुछ उन बच्चों के लिए वो इंस्पिरेशन रहेगा और कुछ प्रेरणा रहेगी और उन बच्चों तक इनकी एक्टिविटी पहुंच पाएगी। तो प्लीज मेरी गुजारिश है, तमाम लोग लॉग इन कीजिए और मैं इन बच्चों से अभी गुजारिश करूंगी, ये हमारे ई वार्ड के अग्रीपाड़ा इंग्लिश स्कूल के बच्चे हैं, इनकी एचएम यहाँ मौजूद है अंसारी रुबीना मैडम, जो कि बहुत ही एक्टिवली एज ए टीचर जब ये थी तो इन्होंने बहुत ही एक्टिवली अपने स्कूल का काम किया था और एचएम बनने के बाद भी इसी तरह से वो एक्टिव है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक our AO मैडम that she has given opportunity to speak few words on climate change. So my students means from Agripada and from New Vaikla School. So they will represent a small kid in front of you. So please take interest and a very warm and happy Children's Day to you all. Good afternoon everyone. My name is Priyanka Gupta. I am the student of MPS New Vaikla English in Standard 8 E Ward. Hello everyone. I am Divya Maurya from MPS New Vaikla School, Standard 8 E Ward. Good afternoon everyone. My name is Zubaida Sheikh, Standard 7 MPS Agripada English School, E Ward. Good afternoon everyone. I am Abdul Qadir of Standard 6 from MPS Agripada English School, E Ward. On this special occasion of Children's Day, we are excited to share an important topic with you from which we can learn valuable moral lessons. So, let's explore together and discover how this value can guide us in making our world a better place to live. Imagine stepping outside on a summer day and feeling a winter chill. Strange, right? This is just one way climate change is reshaping our world. Let's begin our discussion with an amazing topic, climate change. Climate change. It means big change in weather pattern like hotter summer, colder winter or more rain that happen over many years. What happened, Priyanka? Why our earth crown is so sad? Oh Divya, I am so sad because of various human activity which lead climate change. Causes of climate change: deforestation, burning fossil fuel, greenhouse gases, pollution of air, water and land, etc. And all this human activity affected me alone and make me sad. Yeah, it has many effects, I understand, such as glaciers melting, increase in temperature, rising sea levels, land degradation, loss of wildlife and biodiversity. How can we make our earth as joyful as Divya's crown? But we are very small. Can we really save such a big planet like Earth? Your small steps can give big impact and will make better future by following certain things as plant a tree, save water, recycle, clean up trash. We should separate plastic into plastic bins, paper into paper bins, metal into metal bins, glass into glass bins for better recycling. Oh, it's recess time. Have it. What are you eating, Abdul Qadir? I love eating crunchy chips, drinks and candies. But this food does not give you energy. Instead of this junk food, you should eat healthy food like me. Yes, Zubeda is absolutely correct. Eating chapati and salad is healthy food and also keep you safe from harmful disease like anemia. Anemia? What is anemia? Yes, poor diet can lead to anemia. Anemia is commonly found in adult sons. 25% to 30% adult sons are affected worldwide. Anemia is a condition in which body doesn't have enough red blood cell to carry oxygen to its tissues. Let's see the causes of anemia. Iron deficiency, B12 deficiency, folate deficiency, vitamin deficiency, chronic inflammation, poor absorption, and also show you the symptom of anemia like fatigue,
chest pain, dizziness, heart palpitation, headache, pale skin, shortness of breath, pulsatile tinnitus, frequent infections. To prevent anemia, we should eat iron-rich foods as lean meats, eggs, beans, poultry, peas, nuts, milk, cereals, oysters, white beans, dark chocolates and beef livers. Eat fresh, planting trees and heal the earth. Nourish your body, nurture the planet. So, on this Children's Day, we take a resolution to eat healthy and nurture our planet Earth. And a small homework for you to reuse which you see in around, such as glass jar, paper bag, water bottle, newspaper and etc. And we have made this crown, this beautiful necklace and this handbag. And what you will make? I made this ragi roti and green leafy vegetables. Best for health. Thank you. We should always embrace the principle of reduce, reuse and recycle. Like I have personally made some waste product into a useful substances. Like I have used a plastic bottle to make a beautiful flower pot. And also I have made a wall hanging with this waste plastic plate. So this only not affect and make our surrounding creative and beautiful. Dear students, what have you learned today? We have learned about climate change, that how it is affecting us and how actually we are affecting climate, isn't it? Means हमने climate को किस तरह बर्बाद किया है, हमने आज वो पढ़ा है ना? And then हमको क्या करना है ताकि हमारा climate और बर्बाद ना हो। तो क्योंकि हमें आज रेजोल्यूशन लेना है, हम तो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं लेकिन बड़े हो रहे हैं ना, isn't it? हर पल हम बड़े हो रहे हैं, तो हमको हमारी अर्थ को भी ब्यूटीफुल बनाना है। हमको अर्थ मिल गई है ना, इसे हाथों में मिल गई, लेकिन हमको उसको क्या करना है और अच्छे से, जो बुरी हो गई है ना, मतलब गंदी हो गई, डर्टी है, उसको हमको क्लीन करना है। उसके लिए पहले हमारा ब्रेन वॉश होगा, हमको हमारा क्लीन माइंड से हमको पहले ये सोचना है कि हमको क्लीन करना है। एग्जाम्पल कि एक डर्टी रूम है और एक क्लीन रूम है, तो आपको कौन सा रूम पसंद आएगा? ऑब्वियसली यू लाइक द क्लीन रूम, क्लीनर रूम। सो और अगर डर्टी पार्क है और एक क्लीन पार्क है, तो वेयर वुड यू लाइक टू गो? इन अ क्लीन पार्क, इजंट इट? क्योंकि वहां पे सब कुछ सिस्टमैटिक रहेगा, अच्छा रहेगा। तो यू लाइक एन ऑर्गेनाइज्ड प्लेस। तो हमको वही करना है कि घर के अंदर भी हमको सब चीज जगह पे रखना है। एंड इफ यू आर कीपिंग द थिंग्स इन द प्रॉपर प्लेस, हम लोग हेल्प कर रहे हैं अर्थ को। अभी आप बोलेगे मिस घर में हम सामान ऑर्गेनाइज रख रहे हैं, तो अर्थ को कैसे हम ध्यान रख रहे हो? हाँ, हमको सिस्टमैटिक रखते हैं ना जब हम सामान, तो हमारे क्या होता है कि ये जो अर्थ के जो चीजें हैं बराबर उसकी जगह पे पहुंच जाती है। एग्जाम्पल रिसाइकलिंग, जैसा कि अभी प्रियंका ने बताया, isn't it? आपने ये प्रोजेक्ट देखा ना प्रियंका का, कि उसमें क्या कहा है कि हमको जो भी हमारा सामान है घर में, व्हाट वी आर नॉट यूजिंग, यू हैव टू कीप इन द सेपरेट बिन्स। हमको अलग अलग रखना है। आप बोलेंगे क्या मिस वो वेस्ट है, वो सब चला जाता है? नहीं, वो आपका छोटे छोटे जो स्टेप्स है ना, वो बड़े कारनामे करेगा। एग्जाम्पल जैसे कि जो ग्लास के जो है पीसेस ये है, तो वो साथ में नहीं रखना है। इफ यू रिसाइकलिंग, उसका कुछ नया चीज बनती है। अगर पेपर है तो पेपर से हम नया चीज बनाते, और वो सब को अगर हम मिक्स कर देते तो नो यूज, फिर उसका कुछ खास यूज नहीं होता है। तो बेटर वी हैव टू रिसाइकल। सेकेंड थिंग आई वुड लाइक टू से अबाउट रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। तो रिड्यूस का मतलब क्या है? कम, है ना? तो कम क्या है? हमको कम यूज करना है, कोई भी चीज हमको कम यूज करना है। हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको कम यूज करना है। जैसे कि एक 2-4 ड्रेस में काम होता है, तो 10-12 ड्रेसेस नहीं खरीदना है ना? खरीदो, शॉपिंग करो, दैट इज नॉट गुड फॉर अस। हमको क्या करना है? हमारी प्लैनेट अर्थ को ध्यान रखना है कि उसके अंदर गंदगी नहीं बढ़ाना है। तो हमको क्या करना है? कम यूज करना है। एग्जाम्पल, अगर सपोज हमारे घर में एक हमारे पास बेडशीट है, हाँ, तो उसको अगर हमने यूज किया बहुत बार, तो हमको अभी उसका वी आर फीलिंग बोरिंग नाउ, सो व्हाट यू विल डू, उसको हम बीच में से कट कर देते हैं।
कट करके हम उसको 2 पीसेस के अंदर करके एक कर्टन बना सकते हैं, मीन्स पर्दा बना सकते हैं, एंड दस्तरखान है ना डाइनिंग टेबल के ऊपर रख सकते हैं। 2 बन गया अभी हमारे पास। उसके बाद अगर वो भी खराब होने लगे देन व्हाट वी कैन डू, वी कैन मेक नैपकिन्स। मतलब चीज क्या थी हमारे पास, सिर्फ एक क्लॉथ था, लेकिन हम उसको फेंकना नहीं है, उसको रीयूज करना है। मीन्स रिड्यूस भी पड़े, रीयूज भी पड़े और रिसाइकिल भी पड़े हमने। तो ये छोटी छोटी काम जो रहेंगे ना आपके, तो वो बड़े बड़े इफेक्ट्स बताएंगे। और हमको हमारे जो बड़े बूढ़े कहते थे ना, ये सब संभाल के यूज करो, अच्छा यूज करो, लेफ्ट ओवर को यूज करो। जो खाना बच जाता है फ्रेश है, लेकिन हम फेंक देते हैं, नेक्स्ट अगले दिन नया बन जाएगा। नहीं, उसको फ्रिज में रख के उसको अच्छे से करो और नेक्स्ट टाइम वी कैन यूज इट। हाँ, सेव वाटर। पानी हम कितना यूज कर लेते हैं ना, फालतू का वेस्ट करते हैं पानी को। तो वाटर डजंट बिकम स्टेल, कभी पानी बासी नहीं होता है। तो वट एवर वाटर यू आर यूजिंग, जो खाली एक्स्ट्रा कल का पानी जो बचा हुआ है ना, वो हम अलग चीज के लिए यूज करेंगे, वॉशिंग के लिए यूज करेंगे, वाइपिंग के लिए यूज करेंगे और अदर्स प्लांटिंग के लिए। अंडरस्टूड? तो मतलब हमको कोई भी चीज को वेस्ट नहीं करना है। ये हमारे को बहुत अच्छे से मिला है, उसको थैंक यू बोलना है। नेवर टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, उसको अच्छे से यूज करो एंड दिस इज योर रेजोल्यूशन। अब आप बड़े हो गए हैं और कुछ रेजोल्यूशन लो और अपनी अर्थ को सेव करो। टीचर्स, कैसा लगा हमारा सरप्राइज? इन बच्चों ने आपके सामने कितनी बड़ी बात कही है। क्या आप इन बच्चों की बात को मानोगे? मानना ही होगा। अगर हमें हमारी धरती से प्यार है, हमें हमारी धरती से बहुत प्यार है, क्योंकि इस धरती ने, इस देश ने हमें बहुत कुछ दिया है, तो उसके ही लिए हमको ये काम करना है ना। क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी, सर्दी में बहुत ज्यादा सर्दी, तो ये सब हमारी वजह से हो रहा है बच्चों। प्लास्टिक का यूज ज्यादा हो रहा है, कचरा ज्यादा हो रहा है। तो अगर हम सब मिल करके थोड़ा थोड़ा थोड़ा, बोलते हैं ना कि एक एक कतरे से समंदर बनता है, तो अगर आप थोड़ा थोड़ा करके भी एक एक से भी आप स्टार्ट करोगे छोटे से, तो आपको देख करके और भी लोगों में बदलाव जरूर आएगा और एक दिन हमारी ये धरती फिर से वापस अपनी सुंदरता की तरफ आ जाएगी। तो बहुत ही अच्छा लेक्चर रहा ये। अंसारी रुबीना और उनकी टीम जो कि आगरीपाड़ा इंग्लिश स्कूल ई वार्ड से आज हमारे स्टूडियो में आए हैं और यहाँ पर आकर एक बहुत ही चिल्ड्रंस डे के एक बहुत ही अच्छे अवसर पर हमको और हमारे तमाम स्कूल के बच्चों को बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया। तो मैं आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, मेरे बच्चों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक्स अ लॉट बच्चों। और आप लोगों से, बच्चों से मेरी गुजारिश है कि जिस तरह से आज आपने यहाँ प्रेजेंटेशन किया है, ये अपने घर में भी करें, अपने आस पड़ोस में भी ये प्रेजेंटेशन करें। तो थैंक यू, आप लोग लॉग इन किए बहुत ज़्यादा। थैंक यू नवेदा एंड श्री सर, आप लोग यहाँ पर आए और ये प्रोग्राम हमारे बच्चों तक पहुँच सका। थैंक्स हमारी तनुजा उघाड़े मैडम, हमारे वाणी सर और हमारे कंकाल सर, जिन्होंने वीटीसी का माध्यम हमको दिया है कि हम अच्छे अच्छे टॉपिक बच्चों के सामने ला सकें और बच्चों तक ये तमाम चीज़ें पहुँचा सकें। थैंक यू सो मच।